Morning, students. So let's begin with our chapter 1, that is electricity. So today we will be covering up about derivation of combination of resistance, right? So here we have the diagram also. So after this I will be showing you the diagram and we'll do the derivation part of it, right? So as we know that there are the two arrangements of resistance. First is in series and another one is parallel combination, right? So when we move on to the next part, we can see the diagram in which there are two types of resistance. Number one, that is R1, R2 and R3. Okay, so I'm just writing up the equation you can see from the screen itself. So we are doing the derivation of free resistance that is R1, R2 and R3. So as we have the diagram above, you can see current flowing through this circuit will be same in the case of R1, current will be I. In the case of R2, current will be I. And the third one, that is R3, current will be same. Okay, but what is the difference now? As we can see, the difference is that V क्या होगा, हर केस में हमारा क्या होगा, डिफर करेगा, राइट? सो ड्यू टू विच जो भी हमारा डिफर करता है उसी को ही हम क्या करेंगे, वी विल फ्रेम द इक्वेशन from it, right? So we will be framing up the equation from this part as according to Ohm's law. We have studied the formula V is equal to I into R. So when we talk about the first case in the diagram, we can see that V1, here the potential difference will be V1, next case will be V2 and third case will be V3. So the R equivalent will be V1 plus V2 plus V3. So now I will be clearing up this part and drawing up the next equation, right? So now as we can see the diagram over here, we are having V1, V2 and V3. So what we will do, V1 will be I into R1, V2 will be I into R2 and V3 will be I into R3. In each of the cases, what is same? That is current. As this is a case of the series, so current will be
सेम। डिफरेंट क्या होगा हमारा, v। सो द फर्स्ट इक्वेशन इक्विवेलेंट क्या होगा, v1 plus v2 plus v3, राइट। इसको हम लिख सकते हैं veq। So from the equation we will put all the three values. We can write down here equation 1 and equation 2 and equation 3. So what we will obtain, that here we can write down I into R equivalent in series, and here we have I into I1, R1, I into R2, I plus R3, right? So note down this part. This is the important part of this derivation. So note it down. Then we will study about the parallel case. So first of all, as you can see the diagram, we can see that V1 is equal to I R1 and V2 is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3. So we can see that potential difference क्या हो रहा है हमारा, हर particular point पे R1, R2, R3 पे कैसा हो रहा है, differ कर रहा है। सेम क्या हो रहा है हमारा, करंट। तो जब हमारा करंट सेम हो रहा है तो हम करंट सेम वाले को नहीं लेके हम किसको लेंगे, जो चीज हमारी क्या हो रही है, डिफर कर रही है। लाइक इन दिस केस हमारा क्या डिफर कर रहा है, एज वी कैन सी द डायग्राम और यू कैन सी द फ्रंट विच आई हैव रिटन, कि हमारा क्या डिफर कर रहा है इस केस में, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वेशन बनाएंगे, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर होता था। तो हमने इक्वेशन फ्रेम करा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, सेकेंड V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2, थर्ड V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। कॉमन हमारा पास आ रहा है करंट, क्योंकि सब में कैसा होगा, सेम। जैसे ही करंट को हम कैंसिल करेंगे कॉमन लेके, वी विल हैव the R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, add, right? I hope you have noted down this part. I'm just rubbing this part now, clearing up. So what we got finally, we got that I common हुआ तो हमारे पास बचा R1 plus R2 plus R3, right? और इस साइड पे हमारे पास बचा I कॉमन हुआ, R इक्विवेलेंट। सो यहाँ पे देखिए I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल। R1 प्लस R2 प्लस R3 will be equal to R equivalent. So this is the final equation in the case of series. Fine. सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, we take the sum of all resistance, right? So sum of all resistance is the final derivation of resistance in series, right? Now we will be studying about the resistance का set of arrangement in the case of the parallel. First of all, I'm just opening up the slide. This is a slide for the case of parallel. As you can see the diagram, इसमें हमारा क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैसा होगा, सेम। क्या डिफरेंट होगा, I will be different, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा डिफरेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ही डिफरेंस वाली क्वांटिटी ही हमें क्या करनी है, बेसिकली लेनी होती है, राइट?
So now as we know that different quantity हमें लेनी है, तो यहाँ पे हमारा क्या डिफर कर रहा है, I. तो we will take I equivalent is equal to I1 plus I2. कितने टाइप के करंट आ जाएंगे, 3, as you can see the diagram also. अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर होता था, बट यहाँ पे हमें क्या लेना है, I एज अ सब्जेक्ट, सो वी हैव V by R is equal to I. Using it we have V equivalent upon R equivalent is equal to V, जो कि सेम रहेगा R1 plus V R2 plus V R3. Now again we have the common V in all the cases. V equivalent will be V only. So note it down this part so that we can move on to the next part, that is अब हमारे पास क्या कॉमन हो जाएगा, you can see the diagram, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 upon R equivalent will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay, if you note down somewhere, you can also, I will be giving up the notes in the Schoolog app itself, right? So इसमें क्या ध्यान रखना होता है इन डेरिवेशन में, करंट जब भी हमारा सीरीज अरेंजमेंट होता है, करंट हमेशा कैसा होता है, सेम, और जब हमारा पैरेलल होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होता है. अब उसका जो दूसरी क्वांटिटी बची दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारी उल्टी हो जाती है. जैसे आई हमारा सेम इन द केस ऑफ सीरीज, तो उल्टा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर केस में हर एक रेजिस्टेंस में अलग हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम बात करें पैरेलल में, तो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट हमारा हर रेजिस्टेंस में अलग अलग हो जाता है. तो हमें जो अलग क्वांटिटी होती है, डिफर जो कर रही होती है, वही हमें लेनी होती है, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास क्या डिफर कर रहा था, करंट. तो करंट हमने लिया, करंट का फॉर्मूला हो गया V by R. हमने पुट करी वैल्यूज, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास आया. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, लेट मी क्लियर दिस पार्ट. So when I clear this part, we can prove that V equivalent is equal to V लिख सकते हैं हम upon R equivalent, ठीक है, is equal to V upon R1 plus V upon R3, right? So what we can do, V upon R1 plus V upon, right? So we have finally we can cancel out the V from each of the equation, and what we got then, V upon R1 plus V upon R2 कट करेंगे इसको. फाइनली वी हैव इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 upon R3, right? So this is the derivation in the case of parallel. पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, अपॉन में, राइट. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि दो टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं. पहला हमने देखा था सीरीज का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज, ठीक है. दो टाइप के कॉम्बिनेशन, पहला था हमारा सीरीज में. सीरीज में क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसमें हम सम लेते हैं, ठीक है. इस केस में हमारा क्या होता है, इस केस में हमारे पास करंट सम में कैसा होता है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करता है. नेक्स्ट में हमारा क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या वैरी करता है, हमारा करंट, राइट. सो इसका फॉर्मूला और इसका डेरिवेशन यू हैव टू प्रिपेयर, एंड इसके बाद वी विल परफॉर्म सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स.
right? Regarding to this questions, I will be giving up some of the questions which you can do. Suppose that अगर आप अपने एग्जाम्पल या बुक की बात करो तो we have the example 18 of your book. एक इसमें अरेंजमेंट बना हुआ है, राइट, जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस है हमारे पास. एक रेजिस्टेंस है हमारे पास R1 हमारे पास है 5 ओम, R2 हमारे पास है 8 ओम एंड R3 हमारे पास है 12 ओम, राइट. अब 6 वोल्ट का हमारे पास क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक. अब now you have to calculate in the cases that what would be the reading in the ammeter and the voltmeter. Also you have to connect in the series. So आपको क्या निकालना है, resistance, equivalent resistance. So equivalent resistance के लिए हमारे पास क्या होगा, R1 plus R2 plus R3. पुट कर देंगे 5 plus 8 plus 12. Answer will be 25 ohms. ठीक, ये था हमारा कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट. अब नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, रीड्रॉ द डायग्राम. एंड हमें इसको रीड्रॉ करके क्या करना है, पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट एंड voltmeter potential difference is 12. अब की बार potential difference 12 गिवन है और वहाँ पे हमको क्या करना है, हमें रीडिंग लेनी है ऑफ द voltmeter as well as our current. So current as we all know सेम रहेगा, I हमारा सेम रहेगा, V हमारे पास कितना गिवन था, पहले हमारे पास गिवन था V 6 गिवन है. Calculate I. Formula is equal to V by R. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा करंट डिवाइड करके, यू हैव टू सॉल्व आउट द वैल्यू. आई एम राइटिंग द एग्जैक्ट आंसर. अगर वेरी ना करें तो यू कैन लेट मी नो. ठीक, 0.24 करंट आ गया हमारे पास. सेकेंड पार्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना. अब करंट हमें पता है कि करंट हमारा क्या होगा, हर केस में पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा, तो जहां जहां वैरी कर रहा है वहां वहां पे हम क्या निकाल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. सो व्हाट वी विल डू इज, अब की बार हमको क्या गिवन है कि देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम्स एंड करंट हमने निकाल लिया 0.24. V निकाल लो I R से. ठीक है, सो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, that is equivalent to 2.88. See, I am directly writing up the answer. You have to solve it. We are having this online lectures, so I am not solving it properly. बस I am telling you the method कि जो भी हमें कभी भी रेजिस्टेंस निकालना, अगर ये सीरीज में है, ये किस में था, सीरीज में. सीरीज में तीनों का क्या हो जाता है, सम. ओके, सम होने की वजह से तीनों को ऐड कर दिया. फिर हमें पूछा था गया था कि करंट निकालो. वी नो दैट कि रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 25 ओम. करंट एसआई यूनिट्स जरूर लिखनी है. करंट हमें निकालना है, 6 वोल्ट का हमारे पास गिवन है कि 6 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन में गिवन था. वी अपॉन आर करके हमारा, क्योंकि करंट सेम होता है, तो हमने क्या निकाल लिया, आई की वैल्यू आई 0.24. फिर रेजिस्टेंस हमको गिवन था 12 ओम का. करंट हमने निकाल लिया, तो V इज इक्वल टू IR से हमने क्या निकाल लिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस. सो सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स वी हैव टू प्रैक्टिस इट, राइट. कुछ क्वेश्चंस में नेक्स्ट टर्म में आई विल बी डिस्कसिंग अप द नेक्स्ट ऑफ द पार्ट्स ऑल्सो.
पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन और उसके न्यूमेरिकल्स वी विल बी डूइंग अप in the live class also, or we can do it here like that, right? इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है हीट और पावर. वो डिस्कस करके आई विल बी फिनिशिंग अप द चैप्टर्स. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. So I'm just winding up my lecture here. If you have any query, you can ask me up. Right? That's all for today.